تھا کہ شہر میں چلنے کا موسم آ گیا، آ کے موسم بدل دینے کا موسم آ گیا۔ 26 جون 2011 خطہ کشمیر میں جنرل الیکشن کا دن، جس دن لاکھوں ووٹرز ممبران اسمبلی منتخب کریں گے۔ ہم آپ کو 2 انتخابی حلقوں کا موازنہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو تعمیر و ترقی میں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ یہ مناظر انتخابی حلقے LA6 سماہنی کے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی یہ خوبصورت وادی سیز فائر لائن پر واقع ہے۔ اس وادی کے باشندے 12 سال تک بھارتی افواج کی ظالمانہ فائرنگ سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہوتے رہے۔ حالات کی یہ ستم ظریفی اپنی جگہ، لیکن اس حلقے کی تاریخ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج تک اس حلقے سے منتخب ہونے والے ممبران اسمبلی وزارت عظمیٰ یا صدارت کے عہدوں پر فائز نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری جانب اس حلقے کی خوش قسمتی جانیے یا حلقے کے ووٹرز سے احتساب کا خوف جو ممبر اسمبلی منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچا، اس نے حلقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار بحسن خوبی سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہاں مین شاہراہ سے لے کر رابطہ سڑکوں تک معیاری اور مثالی جال بچھا ہوا ہے۔ صحت کی سہولیات میں 50 بستروں کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کے علاوہ کئی رورل ہیلتھ سینٹرز، بیسک ہیلتھ یونٹس کا نیٹ ورک پوری وادی میں پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً 74% گھرانوں کو پینے کے صاف پانی کی سہولت گھر گھر میسر ہے۔ 2 گرلز ڈگری کالجز، 1 بوائز ڈگری کالج سمیت 216 تعلیمی اداروں کا جال تقریباً ہر گاؤں کے بچے کو معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ گورنمنٹ کے جو سکول ہیں ان میں ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ کو شاہراہ مجاہد اول کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب اس سڑک کی وجہ سے مطلب ٹرانسپورٹر پریشان ہے، دکاندار پریشان ہے، ہر آدمی جو ہے نا وہ پریشان ہے۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں پانی یہی ہے پینے کا، بس 1 گڑا روزانہ لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل ہے جو کہ ابھی تک نہیں بن سکا 63 سال میں۔ یہ مناظر کسی اور جگہ کے نہیں بلکہ LA13 غربی باغ کے ہیں جو آج بھی حلقے کی پسماندگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حلقہ LA13 اس اعتبار سے خوش قسمت حلقوں میں سے ایک ہے جس نے بڑی بڑی شخصیات کو جنم دیا، لیکن افسوس انہی بڑی شخصیات نے اس حلقے اور اس کے عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا۔ ستم ظریفی یہ کہ 30 سال تک ایک ہی گھرانے کے تسلط نے اسے مزید پسماندگی میں دھکیل دیا۔ جب اس حلقے کی سڑکوں پر سفر کیا جائے، تعلیمی اداروں کی زبوں حالی کو دیکھا جائے، صحت عامہ کی سہولیات اور پانی کی بوند بوند کو ترستے لوگوں پر نظر ڈالی جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آزاد کشمیر کے 4 اضلاع کو دارالحکومت مظفر آباد اور پاکستان کے شہروں سے ملانے والی سب سے اہم شاہراہ، جسے شاہراہ مجاہد اول کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، آج یہ مسافروں کے لیے شاہراہ عذاب اول سے کم نہیں۔ 23 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹوں کے جان لیوا عذاب کے بعد طے ہوتا ہے۔ کئی سالوں سے جاری اس پر کام مکمل ہونا تو دور کی بات، آغاز ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سڑک کی مکمل اکھاڑ پچھاڑ نہ صرف مسافروں کے لیے مشکلات کا سبب ہے بلکہ ٹرانسپورٹروں اور تاجروں کے لاکھوں کروڑوں کے نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ بارش کے دنوں میں تو اس پر سفر مزید خواری کا سبب ہوتا ہے۔ جہاں میں آیا ہوں میں نے سنا تھا یہ ہمارے PM صاحب کا حلقہ ہے اور PM کا بیسک یہ گاؤں ہے ان کا ذاتی اپنا، اور اس کی حالت جو میں نے دیکھی ہے تو بہت شرمندہ ہوں اس پہ۔ صاحب جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی طرح کی روڈ ہے،
शाहराह मुजाहिद अव्वल है ये। तो इसी तरह देख रहे हैं हम रोड की सूरत आज जिस तरह आपके सामने है। सर गड्डी साड़ी स्लिप हो रही है, लद्दी गड्डी है, असा किधर जाना है, इस वास्ते मजबूरी खड़े हैं असी इत्थे। ये अरसा 3 साल तो मतलब है इस तरह है, गड्डियां दे हिस्से टूट रहे हैं, टायर फट रहे हैं, कमानियां टूट रही हैं, गड्डियां हर चीज का नुकसान हो रहा है इस वेले। 2 मरतबा के सदर और 1 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले कश्मीरी रहनुमा सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान के नाम से मौसूम शाहराह मुजाहिद अव्वल पर सफर करना पुलसिरात अबूर करने के मुतरादिफ है। धीरकोट को दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों से मिलाने वाली राब्ता सड़कों की हालत कभी सदर और कभी वज़ीर आज़म रहने वालों की तामीर और तरक्की के दावों का मुंह बोलता सबूत है। सड़कों की खस्ताहाली और सेहत आमा की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों की कमी आज भी इस हल्के के आवाम पर दोहरे अजाब से कम नहीं है। आज भी मरीजों को दूर दराज देहातों से कंधों पर उठाकर लाया जाता है। कई बदकिस्मत तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और कई मकामी तौर पर सहूलतें न होने के बायस दूसरे शहरों में इलाज की गरज से जाकर परेशान होते हैं और अपने प्यारों पर कर्ज का भारी बोझ छोड़कर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। 1.5 लाख आबादी के लिए पूरे हल्के में एक भी मुनासिब अस्पताल मयस्सर नहीं है। इब्तदाई इलाज का कोई इदारा अगर खाल है भी तो अमला न होने के बायस अक्सर व बेशतर ताला बंद ही मिलता है। खवातीन के अमराज के लिए पूरे हल्के में एक भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। यूं बेशुमार खवातीन दौरान ज़च की मौत के मुंह में चली जाती हैं। इस हल्के में 60% से जायद घरानों को पीने के पानी की सहूलत मैसर नहीं है। नतीजतन घरेलू खवातीन को कई मील पैदल सफर तय करके पानी की बूंद बूंद जमा करके घड़े सरों पर उठाकर लाना पड़ता है। बाज़ इलाकों में तो ये माएं बहनें पूरी रात अपनी बारी के इंतजार में चश्मों पर कतार लगाए बैठी रहती हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ख़वातीन के सरों से घड़े उतारने की आज तक कोई संजीदा कोशिश न की जा सकी। 12 के करीब से आए हैं सब। आते हुए घंटा लगता है, जाते भी घंटे से 1.5 लग जाता है। घड़ा उठा के जाते हुए काफी टाइम लगता है। दीगर इदारों की तरह तालीमी इदारों की जुबूहाली भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। 2005 के जल्जले में तबाह होने वाली इमारतों की बहाली आज तक न हो सकी। हालांकि आलमी बिरादरी ने करोड़ों डॉलरों की इमदाद महज इसी काम के लिए की थी। आज भी इस हल्के के बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तकर्रियों में मेरिट को बालाए ताक रख दिया जाए, जाती पसंद व नापसंद, अकरबा परवरी और सियासी वफादारी मेयार ठहरे तो क्वालिटी तो कुजा फरोग भी रुक जाता है। यही वजह है कि लोग सरकारी इदारों के बजाय प्राइवेट तालीमी इदारों का रुख कर रहे हैं। आज 64 साल बाद हल्के के अवाम कभी सदर और कभी वजीर आजम बनने वाले मुजाहिद अव्वल और फर्जंद मुजाहिद अव्वल से ये सवालात पूछने में हक बजानिब हैं कि कब तक आखिर हमारा खून निचोड़ कर अपने महल बनाते रहोगे? कब तक हमारे कंधों का सहारा लेकर बाप बेटे और फिर पोते की मौरूसी सियासत को परवान चढ़ाते रहोगे? कहां गए वो तुम्हारे वादे अवामी तरक्की के, खित्ते को सरसब्ज और हुनरमंद बनाने के? कहां गए तुम्हारे 18 माह के वादे? कहां गए तुम्हारे टेंडर और ठेके? कहां लगाए तुमने हमारे फंड्स कि हमारी सड़कें तो हम पर ही अजाब बन गई हैं? कहां गए वो तुम्हारे सेहत आमा के मंसूबे कि सिसक कर मर जाना हमारा नसीब ठहरा? कहां गए वो तुम्हारे ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीमों के वादे कि घड़े तो आज भी हमारे सरों पर है? जवाब दो कि अब जवाब लेने का वक्त आ गया है। कि तुम जवाब नहीं दे सकते तो हमारा जवाब सुन लो कि अब की बार हमारा इंतखाब जमाते इस्लामी है, जिसने हुकूमत के ऐवानों में ना होने के बावजूद जल्जले की तबाहकारी हो या कोई भी आजमाइश हमारी दिल खोल कर मदद की।
तुम्हारे गुमाश्तों के जुल्म के हाथ हमारी तरफ उठे तो यही हमारी ढाल बने। हमें इंसाफ की जरूरत पड़ी तो इन्होंने ही हमें इंसाफ दिलाया। तुमने मेरिट पामाल किया तो इन्होंने ही हमारी आवाज में आवाज मिलाई। जिन्होंने गरीब, बेसहारा, बेवाओं और यतीमों को गले लगाया, जिन्होंने तालीम याफ्ता नौजवान मर्दों खवातीन को उनकी दहलीज पर रोजगार फराहम किया। अब की बार हम दयानतदार, अमानतदार और शरीफ क़यादत को असम्बली तक पहुंचाएंगे। अगर इस हल्का के अवाम ने मुझ पर एतमाद किया और इलेक्शन में मुझे कामयाबी नसीब हुई तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर मौजूदा निज़ाम को मुकम्मल तब्दील करके यहाँ पे ये थाने, कचहरी और ये जो बिगड़े हुए इदारे हैं इनको दुरुस्त करेंगे और इसमें तब्दीलियाँ लाएंगे और इंशाअल्लाह हम लोगों को यहाँ पे इंसाफ मुहैया करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो करप्शन हुई है 2005 से लेकर 2011 तक, जिस बड़ी तादाद में यहाँ वसाइल आए, जिन लोगों ने इन वसाइल को लूटा है, इंशाअल्लाह हम हर फोरम से उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उनका मुहासबा कराएंगे। यहाँ सड़कों की हालत नागुफ्ता बे है। इंशाअल्लाह तरजीह बुनियादों पर इन सड़कों की मरम्मत कराएंगे और जो बराए नाम सड़कें हैं उनको बेहतर हालत में हम उनको बनाएंगे। सेहत और सफाई का मामला है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, पूरे इलाके में कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। हमारी ख़वातीन इससे बहुत से मसाइल का शिकार होती हैं। इंशाअल्लाह उनके मसाइल भी हल करने हैं। इसके अलावा हमारी ख़वातीन 2-3 किलोमीटर दूर से पानी के गड़े सरों पर रखकर वो बेचारी पानी लाती हैं और इस वजह से वो अपने बच्चों की तरफ, उनकी सफाई की तरफ उनको तैयार करके अच्छे तरीके से स्कूल नहीं भेज सकती। उनको मसाइल का सामना है। इंशाअल्लाह हम ये पानी के मसाइल और जो ख़वातीन के मसाइल हैं, उनके बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, उनको यहाँ पे ख़ास इस्तेसाल का सामना करना पड़ता है। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में भी खुसूसी तवज्जो देंगे और उनके मसाइल को हल कराएंगे। आइए हम सब मिलकर ये सोचें कि हमने अपने मुस्तकबिल को किन हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना है। क्या वो भी टूटी सड़कों पर सफर करते रहेंगे? क्या हमारी औरतें यूं ही सर पर घड़े उठाए पानी भरती रहेंगी? क्या हमारे अवाम बगैर इलाज के मरते रहेंगे? आइए तब्दीली के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद लतीफ खलीक को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। कई बार खा चुके हो अब ना फरेब खाना, जिसे आजमा लिया हो उसे फिर ना आजमाना।